Hello student, my name is Deepika Sharma. I'm your science educator from Dawud Academy. Today we are going to learn about a very interesting topic of your science subject is circulatory system. In the circulatory system we will study about our heart and how does our heart works. Before knowing how does our heart work, we will see what are the main parts of our circulatory system. There are three main parts of our circulatory system which are heart, blood vessels and blood. We will study these three parts one by one in this chapter. Okay, and before understanding these three parts, we have to know about the function of our circulatory system कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर करता क्या है. तो देखो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द बॉडी. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान हमारी जो ब्लड में क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ फ्लो करते हैं, इस ब्लड में. ओके, और इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारी ब्लड में क्या आता है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन भी फ्लो करता है ब्लड में. तो इस सब का पूरा सर्कुलेशन होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में. और इसके जो मेन पार्ट है वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. देखेंगे व्हाट इज ब्लड. ब्लड इज द स्पेशल फ्लूइड दैट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट. देखो ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और स्पेशल फ्लूइड है विच कैरी आर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड waste. Waste means carbon dioxide produced during the respiration. Okay, it has four component. Blood is made by four component which are RBC यानी कि red blood cells, white blood cells and platelets and plasma. What are these four part and what they do? Our blood has four component. First is RBC means red blood cells. Red blood cells करती क्या है, देखो red blood cells carry oxygen. Inside the red blood cells there is a pigment, red color pigment which gives the red color to the blood. Hemoglobin. Hemoglobin क्या करता है, it binds the oxygen and carry the oxygen inside the blood. So basically RBC का function क्या हो गया, red blood cells क्या करती हैं, they carry oxygen, nutrient and waste. Waste means carbon dioxide gas. अच्छा, second is WBC. The second component of our blood is white blood cells. White blood cells क्या होती है, जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं तो दे फाइट विद दिस डिजीज़. ओके, सो इनका काम क्या हो गया, WBC क्या करती है, फाइट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. ये जो डिजीज़ है उनके अगेंस्ट फाइट करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है. नेक्स्ट component of blood is platelets. Platelets का क्या काम है, platelets whenever you get injured, जब आपको चोट लग जाती है या आपकी बॉडी से खून निकलने लगता है तो उस प्लेस पे platelets आके इकट्ठे हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है और they form blood clots. So इनका काम क्या हो गया, they gather at the site of injury and help to blood clotting process. Next component of our blood is plasma. Plasma is pale yellow color liquid, okay, where all the components float. Now the second organ inside our blood is blood vessels. See, assume like our heart is a motor pump and there are some pipelines which carry water in the motor pump, just like pipeline carry water in the motor pump. Similarly, our heart is a motor pump and some pipeline which are called blood vessels carry blood inside it. There are three kind of blood vessels inside our body which are veins, arteries and capillaries. There are three kind of blood vessels inside our body in which first is artery. Arteries की जो wall होती है वो thick होती है, among three of them thickest wall होती है क्योंकि arteries carry करती है high pressure वाला blood. ठीक. Second is capillary. कैपिलरी की वॉल इन तीनों में सबसे थिनेस्ट होती है. थिनेस्ट वॉल होने के कारण इट अलाउ टू पास शुगर एंड ग्लूकोज, ठीक है, शुगर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना, इनटू और आउट ऑफ और द ब्लड. ठीक है, ब्लड के अंदर जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया या फिर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो गया, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज वेन. वेन्स की जो वॉल है या वेन्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एज कम्पेयर टू आर्टरीज वो कम थिक होता है, लेस मस्कुलर होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, बिकॉज जो वेन्स के अंदर ब्लड मूव करता है या ब्लड फ्लो करता है वो कम प्रेशर वाला ब्लड मूव करता है. अब हम देखेंगे इनके आर्टरीज, कैपिलरीज और
जो वेन्स है, ये 3 ब्लड वेसल्स इनसाइड आवर बॉडी, इनके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो देखेंगे आर्टरीज क्या करती हैं। आर्टरीज देखो, यू कैन रिमेंबर दिस लाइक दिस, ए फॉर आर्टरीज एंड ए फॉर अवे। आर्टरीज जो है हमारे हार्ट से ब्लड को अवे मतलब दूर लेके जाती हैं, ठीक है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये क्या करती है, ये असिस्ट करती है किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। ये क्या करती है, ब्लड में जो ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है उनको अपने अंदर से पास होने देती है, उनको एक्सचेंज करती है। और कहाँ पे एक्सचेंज करती है, टिश्यूज़ या सेल्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है। वेन्स, वेन्स क्या कैरी करती है, वेन्स कैरी ब्लड बैक टूवर्ड्स दी हार्ट। वेन्स जो है जब भी ब्लड एंट्री करेगा थ्रू दी वेन्स, वो वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड जो जब भी ब्लड एंटर करेगा हार्ट में तो वो वेन्स के थ्रू करेगा, जब भी ब्लड बाहर जाएगा हार्ट से तो वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरीज। मेन पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज आवर हार्ट. It works as a pump to move the blood around the body. It works like a motor pump. जैसे मोटर पंप प्रेशर से पानी को ऊपर या नीचे जहाँ भी आपको पानी की सप्लाई चाहिए प्रेशर अप्लाई करती है वाटर के ऊपर। सिमिलरली ब्लड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है वो हमारा हार्ट काम करता है उस चीज़ को प्रेशर अप्लाई करने का, यानी कि इट वर्क एज अ पंप। इट हैज़ अ 4 चैम्बर। देखो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। दी अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया और आर्ट्रियम। देयर इज अ राइट साइड पे जो है वो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट साइड पे है जो लेफ्ट आर्ट्रियम। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बेसिकली अगर मैं इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दूँ तो अपर 2 आर कॉल्ड आर्ट्रियम एंड द लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल। द राइट साइड ऑफ योर हार्ट always carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood means कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो भी आपकी ये राइट साइड है मीन्स राइट आर्ट्रियम बोलो या राइट वेंट्रिकल बोलो, इट विल कैरी CO2 रिच ब्लड जिसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपके हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है लेफ्ट साइड है इट ऑलवेज कैरी, चाहे लेफ्ट आर्ट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। Okay, we have understood that there are 4 chambers inside our heart, means the upper 2 chambers are called arteriums and lower 2 chambers are called ventricle. अब इनको जो separate करती है, what is septum? Septum is the septum is a wall of tissues that separate the left and right side of the heart. जो आपकी लेफ्ट और राइट साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है और इसके बीच में क्या है, एक वॉल है, टिश्यूज़ की वॉल है विच इज़ कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम आपके लेफ्ट और राइट और लेफ्ट हार्ट को सेपरेट करने वाली एक टिश्यूज़ की वॉल है, ठीक है। You can see in the picture, this is the wall which separate the right and left portion of your heart. It is called septum. देखो ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, ये सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड का, ताकि हमें पता है राइट साइड पे जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है और लेफ्ट साइड में जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग ना हो इसलिए देयर इज अ वॉल, टिश्यूज वॉल विच इज कॉल्ड सेप्टम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ आवर हार्ट। राइट साइड है यानी कि राइट आर्टरियम हो या राइट वेंट्रिकल हो, हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और कहाँ लेके आता है, ब्लड राइट आर्टरियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में आता है और कहाँ भेज दिया जाता है, इट इज सेंड टू दी लंग्स फॉर दी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को देने के बाद वापस से लंग्स में देने के बाद लंग्स से जो ऑक्सीजन लेके ब्लड वेसल्स आती हैं वो यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, एंटर करता है लेफ्ट आर्टरियम से एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाता है, अगेन हमारी बॉडी में। पहले हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ आएगा, कलेक्ट होगा राइट आर्टरियम में, आर्टरियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में एंड देन लंग्स को भेज दिया जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ऑक्सीजन लेके ब्लड हमारा फिर से एंटर, देखो जब भी ब्लड एंटर करेगा वो
अपर पार्ट यानी कि अपर चैम्बर आर्ट्रियम से ही एंटर करेगा। वी हैव अंडरस्टूड दैट हमारा ब्लड जो एंटर करता है वो कहाँ आर्ट्रियम में एंटर करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। बट वो एंटर किसके थ्रू करेगा ये हमें जानना होगा। ठीक है, तो वो एंटर करता है, हमारा ब्लड एंटर करता है दो वेन्स के थ्रू। देखो हमें पता है आर्टरीज अवे लेके जाती हैं ब्लड को, हमारे हार्ट से लेके जाती है, लेकिन वेन्स कैरी ब्लड इनसाइड दी हार्ट। वेन्स लेके आर टू लार्जर वेन्स इनसाइड आवर बॉडी विच कैरी ब्लड इनसाइड आवर हार्ट। ठीक है, वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है, और कहाँ लेके आती है हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ पे सबसे पहले आएगा राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा क्या है, ये हमारी वेन्स हैं, ये कलेक्ट करती है जो ब्लड को कहाँ से, हमारे अपर बॉडी पार्ट से, यानी कि हमारा अपर बॉडी पोर्शन हो गया, हमारे ब्रेन से, हमारी हैंड से, हमारा जो भी अपर चेस्ट है, ठीक है, जो भी हमारा अपर बॉडी पोर्शन है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है हमारी राइट आर्ट्रियम में। और ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड अबव द हार्ट। तो ये जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट आर्ट्रियम में लेके आती है। देयर इज़ वन मोर वेन विच इज़ कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। ये इट इज़ लोकेटेड बिलो द हार्ट, जो हमारे हार्ट के नीचे लोकेटेड है, और ये जो कलेक्ट करती है ब्लड को टू दी लोअर बॉडी पार्ट। लोअर बॉडी पार्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करती है और इट कैरीज ब्लड deoxygenated blood from the lower part of our body and back to the heart। और ये it is located below the heart and it collects blood from the legs, back, abdomen and pelvic। देखो ये जो inferior और superior वेना कावा है ये कैरी करती है, ये वेना कावा है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है और कहाँ लेके आती है हमारे राइट आर्ट्रियम में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हर हार्ट, कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है। ठीक है, इससे पहले हमें ये याद रखना होगा कि जो वेन्स है, वेन्स हमारे जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है, यानी कि जब भी ब्लड की एंट्री होगी वेन्स के थ्रू होगी, और जब ब्लड एग्जिट करेगा फ्रॉम द हार्ट तो वो आर्टरीज के थ्रू करेगा। ठीक है, हम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ दी लार्जर वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी राइट आर्ट्रियम, और देयर इज़ वन मोर आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड aorta। aorta इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करती है, आर्टरीज क्या करती हैं, दे टेक अवे ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। ओके, तो वेन्स सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम यानी कि सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी किसमें, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम इज दी अपर चैम्बर ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, अब ये जो चैम्बर है राइट आर्ट्रियम जब फिल हो जाएगा तो देयर इज इनसाइड आवर हार्ट देयर आर 4 वॉल्व, यू कैन से इट देयर आर 4 डोर जो ओपन होते रहते हैं, ओपन क्लोज होंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे अश्योर कि ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, बैक फ्लो ना हो, कि आर्ट्रियम से यानी कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही मूव करेगा और बैक फ्लो नहीं करेगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम में मूव नहीं करेगा। तो ये वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं देन क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो देयर इज अ वॉल्व विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व इन बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जब आर्ट्रियम जब फिल हो जाता है किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, tricuspid wall will open and the blood will enter in the right ventricle। right ventricle में deoxygenated blood आ गया। अब जब right ventricle fill हो जाएगा तो there is one more valve which is called pulmonary valve। it is situated between the pulmonary arteries and right ventricle। जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तो ये ब्लड ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा और जो ये ब्लड है ये कहाँ पुश कर दिया जाएगा,
पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेके जाएंगी लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ पे एक्सचेंज करेगा, किससे? ऑक्सीजन से। कैपिलरीज के थ्रू ये एक्सचेंज होता है। नियर द एल्वियोली देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और ऑक्सीजन वेन्स में, वेन्स के थ्रू यानी कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में एंटर करेगा? अगेन हार्ट में एंटर करेगा। और एंटर कहाँ से करेगा? इन द लेफ्ट आर्टरियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इन द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू द pulmonary veins। ठीक है, अब when left atrium will fill there is one more valve which is called mitral valve और bicuspid valve, ये open होगा और जो oxygenated blood है will enter in the left ventricle, वो left ventricle में ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर कर जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तो देयर इज वन मोर वॉल्व विच इज सिचुएटेड बिटवीन aorta and left ventricle, is it is called aortic valve। aortic valve open होगा, है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इन दी aorta और aorta से अपर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाएंगी और लोअर बॉडी पार्ट में ऑर्टा डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग ऑर्टा जो है वो लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लड जो हार्ट है इसकी फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ एंटर करता है? वो कहाँ किसके थ्रू एंटर करता है? अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके आती है सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है इंफीरियर वेना कावा और ये ब्लड एंटर करता है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर करता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम जब फिल हो जाता है तो देयर इज अ वॉल्व विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन होता है और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ एंटर कर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो ये पुश कर दिया जाता है किसकी तरफ? पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। पल्मोनरी आर्टरीज किसको कहाँ लेके जाती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स में और लंग्स में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे दी जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन लेके वेन्स यानी कि कौन सी? पल्मोनरी वेन्स एंटर करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके एंटर करती हैं लेफ्ट आर्टरियम में और देयर इज अ वॉल्व, अगेन वॉल्व ओपन होता है विच इज़ कॉल्ड मिट्रल वॉल्व और यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है तो आपका ब्लड एंटर करता है किसमें? aorta में। aorta is the largest artery of your body और यहाँ से जो ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है आपकी सारी बॉडी पार्ट तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, so this is the function of your heart। So in circulatory system there are two circuit forms which is the upper circuit form in between the lungs and heart। In between the lungs and heart it is called pulmonary circuit। इसमें क्या होता है कि हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिप्लेस कर देता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड कहाँ आता है, कहाँ एंटर होता है? अगेन हार्ट के अंदर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल enter inside the heart, तो there will be a circuit form which is called pulmonary circuit। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाता है? हमारी बॉडी पार्ट तक, हर एक बॉडी पार्ट तक, किसके थ्रू? ऑर्टा के। और अब जो ऑक्सीजन जो हमारी हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक जो ऑक्सीजन पहुंच चुकी है ये क्या करेगी? ये ग्लूकोज की ब्रेकिंग करेगी और एज अ रिजल्ट क्या बाय प्रोडक्ट मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड में फ्लो करती है और कहाँ? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ आता है? अगेन हार्ट के अंदर आता है ना। और हार्ट के अंदर किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये अगेन हार्ट में राइट आर्टरियम में एंटर करता है और there is a circuit form in between the heart and our body which is called systemic circuit। Now there is a quick recap of this chapter circulatory system is हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? We studied about heart। Heart is a muscular organ which has four chamber, upper two chamber are called atrium and lower two chamber are called ventricle। और ये क्या करता है? It pumps blood around the body। Now हमने पढ़ा blood is a special kind of fluid inside our blood vessels और it has four components which are plasma, red blood cells, white blood cells and platelets।
अब ब्लड की फंक्शनिंग क्या है? इट कैरीज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट. वेस्ट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स are tubes inside our body that carries blood, that carries nutrient and oxygen inside it. Okay, so there are three types of blood vessels inside our body: arteries, veins and capillaries. Now we have understood about the circulatory system and how does our heart work. So our heart work day and night. We should keep our heart healthy. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We should eat healthy and we should exercise more. I hope you enjoy the lecture and understood about our circulatory system. For more such video, please subscribe our channel Dabit Academy. Thank you.